Welcome back, India aspirants, to the 36th of 40 lectures in the crash course for English by Ma Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. You must remember, we've been doing the grammar section, which is relevant for your NDA, CDS, AFCAT examinations, all of them. We did narration, voice as well, apart from the parts of speech. Today we are ending with a grammar section with conditional sentences. After this, the few lectures that we do have remaining are miscellaneous lectures, which involve spellings, etymology, logic, which is a new introduction into the examination this year in the CDS examination, as we saw, plus comprehension, few strategies of comprehension regarding passages directly, or arrangement of phrases or arrangement of sentences. Those are the things that we're going to be doing ahead in the next 4 lectures. Today we are finishing with the grammar section with conditional sentences, a very important part. Many questions show themselves up from this topic. Without any further ado, let's get right into it. So conditional sentences क्या मतलब, जो सेंटेंसेस निर्भर होते हैं एक दूसरे पर, जिसमें एक सेंटेंस जो है, सेंटेंस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर निर्भर है, उसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. कंडीशंस होते हैं जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन द कंप्लीशन ऑफ वन वर्क इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, जब एक कार्य की पूर्ति दूसरे कार्य पर निर्भर होती है, देन सच सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस. तब ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं. एग्जांपल, यू विल सक्सीड प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड. अब यू विल सक्सीड एक सेंटेंस है, यू वर्क हार्ड एक है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है. कैसे? तभी सक्सीड होगे जब हार्ड वर्क करोगे. तो you will succeed provided you work hard, you will succeed only if you work hard, you will succeed if you work hard, you will succeed बशर्ते कि आप मेहनत करो. प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते. तो ऐसा. और कौन कौन से कनेक्शंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, कौन से कंजंक्शंस होते हैं, कौन से एडवर्ब्स होते हैं, या कौन से प्रेपोजिशंस तो नहीं, कंजंक्शंस और एडवर्ब्स, मोस्टली एडजेक्टिव्स, इवन नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब्स. कंडीशनल्स primarily adverbs and conjunctions, even prepositions, but they will be acting as conjunctions in that sense. And we'll move ahead with that. So if, जैसे if है, if you do something, something else happens, तो if के साथ कुछ लगेगा, comma लगेगा, फिर कुछ और लगेगा. If you work hard, you will succeed. Provided देख लिया हमने. As soon as, जैसे ही, as soon as I entered the class, the students became silent. As soon as I entered the class, the students became silent. No sooner के साथ than लगता है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं. एक बार फिर से देखेंगे यहाँ पे conditional sentences में. No sooner did the teacher enter the class than the students became quiet. When the teacher entered the class, the students became quiet. Unless the teacher enters the class, the students will not become quiet. Until the light turns green, we will not move. Unless और until के बीच में हमने डिफरेंस देखा था. Until होता है कि बस समय के साथ साथ अगर काम हो ही जाएगा तो until यूज करते हैं. Unless है कि सिर्फ समय बीतने से कार्य नहीं होगा, कुछ और करने की भी आवश्यकता पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैठे हुए हैं क्रॉसिंग पर, रेड लाइट हो रखी है, तो हमें पता है कि समय बीतने के साथ ग्रीन लाइट तो हो ही जाएगी, तो until यूज करेंगे वहां पे. द कार विल not move until the light turns green. Unless नहीं, unless तब यूज करेंगे जब हम कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर हमें शायद भरोसा नहीं है, पर ऐसा हम कर नहीं सकते. सरकारी एग्जाम्स में हम लोग कभी भी सरकार के विपरीत कोई भी कंसिडरेशन नहीं रखेंगे. We will always say that the government is acting in the best possible way, in the perfect way, with perfection, even if it is not. Don't listen to me in that sense. Just listen to me regarding English and other things as well. Actually, use your own brain. Use your own brain. कंडीशनल सेंटेंसेस कंटिन्यूड. अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, इफ क्लॉज होता है, एक मेन क्लॉज होता है. इफ क्लॉज होता है जो कंडीशन डिपेंडेंट होता है, और मेन क्लॉज होता है जिस पर जो मेन जो चीज बताई जा रही है कि ऐसा होगा. और इफ यू, फॉर एग्जांपल, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, तो यू विल सक्सीड इज द मेन क्लॉज. इफ क्लॉज इज इफ यू वर्क हार्ड विद द इफ. अब कंडीशनल सेंटेंसेस आर 3 मेन काइंड्स. पहला, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में है, इफ क्लॉज पास्ट टेंस में है, या इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है. इसके अतिरिक्त चौथे टाइप के भी होते हैं, अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, जो बाकी और मिसलेनियस टाइप्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे. 3 मेन कौन से हैं? 3 मेन वो है जहां पे इफ क्लॉज है तो प्रेजेंट टेंस में. इफ आई प्ले क्रिकेट, तो उसके बाद जो मेन सेंटेंस जो बनेगा वो किस में आएगा? फ्यूचर सिंपल में. इफ आई प्ले क्रिकेट आई विल बिकम बेटर एट इट. पास्ट टेंस में, इफ आई प्लेड क्रिकेट आई वुड, वो अगला भी पास्ट में आएगा. इफ क्लॉज पास्ट, इफ आई हैड प्लेड क्रिकेट आई वुड हैव बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा. लेट्स सी इन डिफरेंट वेज हाउ इट वर्क्स विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स. तो ये 3 बस देख लीजिए कि 3 वो है कि इफ क्लॉज या तो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और अदर टाइप के हैं वो मिसलेनियस हम लोग आगे देख लेंगे. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इफ क्लॉज इन द प्रेजेंट टेंस. इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट टेंस में, तो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट लगता है और उसके बाद सिंपल फ्यूचर आता है. देखो, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, गलत है. क्यों? क्योंकि इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट. इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू. Try to make more sentences of this and write down in the comment section. If you're not in my class, if you're in my class, all you need to do is put your present in the comment section. And both of you, the one who is in my class and the one who is not in my class, please hit the like button.
spread the video more, get more people associated with us so that our military gets stronger candidates and the country becomes better. So yes, with your like, the country will become better. एक जमाने में ऐसा होता था कि हम लोग सोचते थे कि लाइक करने से क्या होगा, लाइक करने से कुछ बेहतर नहीं होगा, पर नहीं, अब होता है. जो भी कंटेंट सही आपको लग रहा है और आपको लगता है कि सब लोगों के बीच में जाना चाहिए, उस कंटेंट को आप एंगेज करें उसके साथ, so that more people are introduced to that content and we can have an impact. We can have an impact which is greater than the one that we would have had otherwise. Sweet. So if two things are happening in the future, one after the other, and the second one is dependent on the first, and the first one is in simple present. अब देखो दो चीजें हो रही हैं. Two things are happening in the future. दो चीजें हो रही है भविष्य में. One after the other, एक के बाद एक. And the second one, और दूसरी वाली जो है वो dependent on the first one, वो पहली वाली पर निर्भर करती है. If I play cricket, I will become better at it. तो दूसरी वाली जो है I will become better at it, वो पहली वाली पर निर्भर कर रही है. Then the first one is in the simple present. तो simple present में पहला वाला if I play cricket, if I play cricket, simple present है ये. अगर नहीं समझ में आ रहा है simple present तो जाके tenses एक बार फिर से रिवाइज करिए. And the second one is in simple future. If I play cricket, I will become better. तो I will become will है, simple future बन गया. देखो, she dashed to see you as soon as you reach Delhi. She will come. समझिएगा, फ्यूचर वाला कौन सा है, जिस पर निर्भर है. फ्यूचर वाला कौन सा है, इन द फ्यूचर वन आफ्टर द अदर. सेकंड वन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज इन द सिंपल प्रेजेंट. सेकंड वन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट वन. जिस पर निर्भर है वो सिंपल प्रेजेंट होगा, जो निर्भर है वो फ्यूचर में होगा. तो शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली. जिस पर निर्भरता है वो सिंपल प्रेजेंट में, जो निर्भर है यहां पे साथ में रखते हैं हम लोग. यहां पे इफ आई प्ले क्रिकेट आई विल बिकम बेटर. जिस पर निर्भरता है, निर्भरता किस पे है, मेरे क्रिकेट खेलने पर. और जो निर्भर है, मेरा बेहतर बनना निर्भर है मेरे क्रिकेट खेलने पर. तो जो निर्भर है वो फ्यूचर टेंस में होगा, सिंपल फ्यूचर में. जिस पर निर्भरता है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा. अब यहां पे देखो निर्भर क्या है. शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली. उसका आना निर्भर करता है किस पर, आपके दिल्ली पहुंचने पर. तो निर्भरता जिस पर है वो सिंपल प्रेजेंट, जो निर्भर है वो सिंपल फ्यूचर. इफ द गवर्नमेंट, अब बताओ इफ द गवर्नमेंट विल बिकम होगा कि बिकम्स होगा. इस पर निर्भरता है करप्शन डैश, करप्शन का ये होना इस पर निर्भर है. तो जो निर्भर है वो सिंपल फ्यूचर में, करप्शन विल श्योरली फिनिश, और करप्शन विल श्योरली बी फिनिश्ड, will surely finish. Sure, why not? If the government becomes strict, corruption will surely come to an end. Corruption will surely come to an end is a better word here. Better phrase, surely come to an end. Corruption will surely come to an end if the government becomes strict. जिस पर निर्भरता है सिंपल प्रेजेंट में, जो निर्भर है वो सिंपल फ्यूचर में. तो करप्शन का एंड होना निर्भर है किस पर, गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट बनने पर. तो जो निर्भर है वो सिंपल फ्यूचर में, जिस पर निर्भरता है वो सिंपल प्रेजेंट में. ये मैं बार बार बोलूंगा ताकि आपको बहुत ही गहराई तक ये बात समझ में आ जाए, कोई भी आपके साथ दिक्कत ना पड़ी रहे इसमें. अनलेस ही डैश ऑफ हिज हेल्थ ही डैश. अच्छा, अब क्या किसकी निर्भर क्या कर रहा है, उसका बेहतर होना निर्भर कर रहा है उसके ठीक ठाक चलने पर, अपने परवाह करने पर. उसका बेहतर होना निर्भर कर रहा है उसके अपनी परवाह करने पर. तो निर्भर जिस पर कर रहा है वो सिंपल प्रेजेंट में होगा. अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ ही विल नॉट रिकवर. देयर डैश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन डैश. देयर ट्रेन जब आएगी तब होगा, तो ट्रेन के आने पर निर्भर है. व्हेन द ट्रेन अराइव्स there will be rush at the platform, or there will be a rush at the platform when the train arrives. तो will be, यहाँ पे will future इधर आएगा. There will be a rush at the platform when the train arrives. All right, now if clause in the present tense continued,
Following words are not followed by will shall immediately. जैसे if, as soon as, provided, before, after, until, unless, in case, when, lest. ये सारे वो वर्ड्स हैं जिसके बाद वो चीज आएगी जिस पर निर्भर हो रहा है. तो अगर ये वो वर्ड्स हैं जिसके बाद वो वाली स्टेटमेंट आएगी जिस पर निर्भरता है तो वो विल नहीं रखेगा. विल क्योंकि वो सिंपल फ्यूचर नहीं होगा, वो सिंपल प्रेजेंट होगा. बस ये दूसरा तरीका है कहने का. हम लोग ने अभी तक कहा कि जिस पर निर्भरता है वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा. जिस पर निर्भरता है वो ज्यादातर ऐसे शब्दों से शुरू होते हैं, इन शब्दों से. इफ, एज सून एज, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, इन केस, व्हेन, लेस्ट. लेस्ट हम लोग ने पहले किया हुआ है, अगर आपको याद नहीं एक बार जाके देख लीजिए. लेस्ट मतलब उसके आगे वो लगता है कि जो आप नहीं चाहते हैं होना. Revise the entire lectures if you do not remember lest. We've done it like 3 or 4 times already. Following words are not followed by will shall. Obviously ये वाले words हैं जो उस statement को introduce कर रहे हैं जिस पर निर्भरता है. जिस पर निर्भरता है वो simple present में होगा, और अगर simple present में होगा तो will shall नहीं लगेगा. Alright. Now we do not use unless and until. We do not use not with unless and until. Unless और until के साथ आगे not नहीं लगता है. Unless के आगे positive statement लगती है. Unless I do not come नहीं. Unless you come, I will not go. Unless you come, unless you go, unless you do not go नहीं. Not नहीं लगता है unless और until के साथ. Unless और until के बाद positive statement लगती है, negative statement नहीं लगती. याद रखिएगा. चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. If the entire sentence is in the present, then the main clause can also be in the simple present. अगर पूरा sentence present में ही है, If the entire sentence is in the present, कि सब कुछ अभी हो रहा है, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही, आगे की बात नहीं हो रही कि ऐसा होगा, अभी की बात हो रही है कि अभी अगर हो रहा है तो ऐसा हो रहा है या होता है, तो मेन क्लॉज भी उसमें सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा. तो जो निर्भर कर रहा है, जिस पर निर्भरता है वो तो सिंपल प्रेजेंट में था ही, पर जो निर्भर कर रहा है वो भी सिंपल प्रेजेंट में आ जाएगा. कैसे देखो, इफ इट रेन्स द स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड. If it rains, the schools remain closed. The schools will remain closed is also correct, but schools remain closed would also be correct here. Both of them will have different meanings, different senses, but trying to say the same thing. That if it rains, the schools remain closed. They remain closed. That's a declaration, like declaring. Band hai schools. If the sentence is about probability, then we use may, might in the place of will. अगर probability की बात हो रहा है, संभावना की बात हो रही है, तो हम will नहीं यूज करेंगे, may या might करेंगे. If it rains, the students may not come for class. Will not come नहीं, may not. हो सकता है कि ना आए. If the fog remains, the place may get late. If the fog remains, the place may get late. The play may get late, or the event may get late. The place may get late, or people may get late. The people may get late. If the fog remains, the people may get late. I think the best part here is people. The best word, suited word. That is what it is trying to say. Instead of place, it should be people. If the fog remains, the people may get late. Will get late नहीं, निश्चित नहीं, हमें हो सकता है कि लेट हो जाए. हो सकता है उनमें से कोई पहले से प्लान करके बैठा हो कि हाँ फॉग हो सकती है, तो they have anti-fog, like fog lamps that help them through the fog. Perhaps they are contingency planners, effective intelligence के साथ. Contingency planners, contingency issues मतलब भाई आपातकालीन स्थिति, कोई अचानक से कुछ अगर इमरजेंसी आ गई, तो कंटिंजेंसी प्लानिंग यही होती है भाई, आप पहले से ही सोच कर रखें. आप घर से निकल रहे हैं, आधे घंटे का रास्ता है, आप आधे घंटे पहले ही निकल रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम ज्यादा हो गया, पंक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे समय पे. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं जिसमें समय में पहुंचना ही चाहिए, उसमें आप कंटिंजेंसी इशू साथ में लेकर चले कि भाई आधे घंटे पहले ही पहुंचे. कहीं अगर कुछ ऐसा हुआ कि रोड खराब है, कहीं ट्रैफिक जैम हो रखा है, कहीं कुछ किसी को आवश्यकता पड़ गई हेल्प की, कहीं टायर पंक्चर हो गया, कुछ भी हो गया, आधे घंटे का आप बफर लेके चले, इसको कहते हैं कंटिंजेंसी प्लानिंग. अब भैया जो आधे घंटे का बफर नहीं, आधे घंटे और उसमें 25 मिनट पहले ही निकल रहा है, वो क्या समय पर पहुंचेगा और क्या ही प्लानिंग करेगा और क्या ही ऑफिसर बनेगा. तो रिस्पेक्ट टाइम एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ. हमेशा ऐसा नहीं होता. आपको जज करना होगा कि लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइक फॉर एन एग्जामिनेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन कम्स वंस इन अ वाइल, हर बार नहीं होता है वो, तो उसमें आपको कंटिंजेंसी प्लानिंग करके चलनी चाहिए. हाँ, क्लासेस रोज होती है, तो रोज ये है कि आप आधे घंटे अगर आपको लगते हैं तो आप 35 मिनट पहले निकल रहे हैं, 5 मिनट का बफर लेके चल रहे हैं. कभी कभी अगर कोई कंटिंजेंसी इशू आ गई तो वो टीचर भी समझेगा, इंस्टीट्यूट भी समझेगा वो जगह का. आप पहले इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखो मेरा टायर पंक्चर हो गया, रास्ते में थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं. 1 महीने में एक बार होता है वो, 2 महीने में एक बार होता है. कंटिंजेंसी इशूज कितने होंगे, रोज तो टायर पंक्चर होता नहीं है, 1 महीने में एक बार होगा. पर वो 1 महीने में एक बार आपके एग्जाम के दिन ना हो जाए,
तो एग्जाम के दिन आपको वो कंटिजेंसी प्लानिंग करके चलनी चाहिए स्पेशल डे पर। तो ये जजमेंट जो है वो उसको इफेक्टिव इंटेलिजेंस साथ में कंटिजेंसी प्लानिंग चलेगी। Alright, let's look at the next then. If the sentence is about probability, then we may use may, might in the place of will. Example, if it rains, the students may not come for class. You can try more sentences for this where probability plays a role, and then we will not use will, we will use may or might. If the sentence gives permission, then too we can use may in the place of will. If you finish your work, you may go home. कि अगर आपने खाना खत्म कर लिया तो आप जा सकते हो, काम खत्म कर लिया तो आप जा सकते हो, तब आप जा सकते हो, काम खत्म करके आप जा सकते हो। तो उसमें भी परमिशन के में भी हम may यूज करेंगे। Try making more sentences with this as well if you want, and you can send them over through the comment section, and or come to class and discuss in the class. If the clause in the present tense continue, all right. If the sentence is a suggestion or advice, then we must use should, must in place of will. अब suggestion or advice है तो will की जगह should या must लगेगा। If you want to remain healthy, you should exercise daily. If you do not know him, you must not open the door. तो यहाँ पे देखो must और should लग रहा है क्योंकि advice है। Same thing, it's just adding on to it. If the sentence is regarding a formal request, then we can use could, may, would according to needs. If you meet him, could you tell him to call me up, please? Would you call him up? May you call him up? May I do? If you come to Delhi, may I come to meet you? If you come to Delhi, would you come to meet me? If you come to Delhi, may I come to meet you? May I come to meet you? इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। will हो जाएगा, क्वेश्चन है कि will I come to meet you, आऊंगा कि नहीं आऊंगा। If you come to Delhi, will you come to meet me? क्या आप आओगे कि नहीं आओगे? Would you come to meet me? क्या आप आ जाओ यार प्लीज आप आओगे क्या? ऐसा ये डिफरेंस हो जाएगा। तो will और would में ये डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे would जो है वो मॉडल वाला would है, ना कि past tense will मॉडल वाला would है। And will जो है will you come to Delhi, there will is the auxiliary, the helping verb, not the modal, but the helping verb in the continuous tense or the future tense, sorry, will be or will be playing, will play, will be playing. So will be वाला या will वाला है वो। If clause in the present tense continue. Now, the simple present can also be replaced by the present continuous in the if clause. यहाँ पे आप simple present की जगह present continuous भी लगा सकते हैं, वो भी आ सकता है। देखो, if you are waiting for the bus, you should better take the taxi. If you are waiting for the bus, you should better take the taxi, क्योंकि बस नहीं आने वाली। आप अगर बस के लिए इंतजार कर रहे हैं तो बेहतर होगा आप टैक्सी ले लें, बस नहीं आएगी। If you are not reading the newspaper, you should let others read it. कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, then you should let others read it. कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको दूसरे को करने देना चाहिए। तो you should के साथ यहाँ पे यूज होगा। Try using it with other words as well. See if they're correct, incorrect. Write it down in the comment section and I will tell you whether they are or are not. If clause can also have a present perfect tense. Example, if you have finished the work, you may leave. Present perfect के साथ यूज हो रहा है if clause। देखो, present perfect. If you have finished the work, you may leave. If you finish the work, already done. When you finish the work, you may leave. If you have already finished the work, if you finish the work, you may leave. If you have finished the work, you may leave. If they have bought tickets, they will surely go to see the movie. They will surely go to, if they have bought the tickets, they will surely go to see the movie. अगर टिकट खरीद ली है तो फिर तो पक्का है कि मूवी देखने जाएंगे। Try using more sentences in this structure. Let's see. अगला past conditional में आ गए हम। past conditional कैसा दिखता है? If clause in the past tense. If clause जो है वही present tense में था, past tense में हम देख रहे हैं कि if plus simple past फिर subject plus would plus V1. If I had money, I would lend it to you. If I had money, I would lend it to you. Past tense ऐसा दिखता है। The first part expresses improbability, मतलब मेरे पास नहीं है। पहला part जो बता रहा है वो improbability बता रहा है कि मतलब if I had it, मतलब मेरे पास नहीं है। If I were वाला भी conditional sentence में ही बनता है। देखो, if I were a millionaire, I would do something. Remember, if I were subjunctive mood जो था वो भी वैसा ही past conditional sentence है। If I were. Similar structure there as well. Alright, let's see. If clause the past perfect, past conditional, past perfect और simple past में देख रहे हैं हम। past perfect कैसा दिखेगा? If plus past perfect है तो subject plus would plus have एक नया चीज आ गया यहाँ पे। पहले सिर्फ would था, would के साथ V2 था, यहाँ पे would plus have plus V3 है। You see the difference? would के साथ V1 था, would plus V1 था, यहाँ would plus have plus V3 है। देखो एक बार, if I had seen you, yes, past perfect, I had seen you, I would have stopped the, if I had seen you, I would have stopped the car. अगर मैंने देखा होता आपको मैं रोक देता गाड़ी। If I had seen you, I would have stopped the car. If I saw you, I would stop the car. If I saw you, I would stop the car. If I see you, I will stop the car. If I had seen you, I would have stopped the car. ये तीनों तरह के अभी जो हमने देखे हैं वो है, एक बार रिवाइज कर लीजिए वापस जाके अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ये वाला लेक्चर आपको थोड़ा बहुत ही गहराई से और
समझ के आगे बढ़ना है, हर एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको जो कही जा रही है यहाँ पे। द फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेसेस दैट विच डिड नॉट हैपन। पहला आप क्या बता रहा है, वो जो नहीं हुआ। इफ आई हैड सीन यू मतलब मैंने नहीं देखा, अगर देखा होता तो। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर देखा होता तो, इसका मतलब मैंने नहीं देखा। ये अपने आप में इम्प्लिसिट है, उसमें इनहेरेंट है, उसमें इम्प्लिसिट मतलब उसमें समझ में आ रहा है, इट इज अंडरस्टूड इन इट, अंदर उसके बसी हुई है वो। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने आपको देखा होता, इसका मतलब मैंने आपको नहीं देखा। In this, we can remove the if by turning the first part into an interrogative structure. For example, had I seen you. If हटा सकते हो, had I seen you लगा सकते हो। Had I seen you, I would have stopped the car. अब interrogative structure use हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं auxiliary को subject से पहले लगा रहा हूँ। देखो, if I had पीछे आ गया, had I seen you, I would have stopped the car। यहाँ पे ये भी structure हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं बनाए पर ये सिर्फ interrogative structure use हुआ है if हटा के, बाकी क्वेश्चन नहीं बन गया है। ये भी एक तरीका है पूछने का। और रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। if plus present indefinite with simple future, इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लो आप। if plus subject plus had plus v3, past perfect तो s plus would plus have v3। if plus subject plus v2 मतलब simple past, simple past में subject plus would plus v1। अभी जो हमने किया बस उसी का एक रिकैप है स्ट्रक्चर्स के स्तर पर। ऑलराइट, लेट्स सी अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस नाउ। फर्स्ट इज सब्जंक्टिव मूड, जो मैंने बोला सब्जेक्ट सब्जंक्टिव मूड। If I were a bird, I would fly in the sky. This is the same as the simple past structure. Simple past structure ही है ये, but subjunctive mood अलग से बता रहे हैं एक बार फिर भी। If I were a bird, क्योंकि ये बताने के लिए कि इसमें हमेशा were लगता है, चाहे यहाँ पे I हो, you हो, he हो, she हो, it हो, they हो, सबके साथ were ही लगेगा यहाँ पे। Other cases of using were with if के साथ हुआ है, were और भी use होता है, as though, in case, as if, would that, I wish। He scolded me as if he were my father. So I cannot be your father, but I can always be your daddy. No, it's okay. He scolded me as if he were my father. अच्छा, as though he were my father वो भी हो जाएगा। In case I were, यहाँ पे कहते हैं in case I were a bird, थोड़ा फॉर्मल हो जाएगा ये। In case आप फॉर्मल उसमें यूज कर सकते हो। As if हो गया। Would that I were a prince, ये if I were है, would that, if की जगह यहाँ पे would that भी लगा सकते हैं। would that I were a prince, would that ये भी सही है। would that I were a bird, I wish I were a bird, then I would fly in the sky। I wish I were a bird, then I would fly in the sky। तो वो exactly इसमें नहीं लग पाएगा। I wish के लिए थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। would that I were a bird, I would fly in the sky is correct। in case I were a bird is also correct, if I were a bird is also correct, but I wish के साथ I wish I were a bird, then उसके साथ लगाना पड़ेगा एक, then I would fly in the sky। Alright, then we got continuation of conditional sentences, other types। In if clauses we can also use unless, so long, as soon as, when, provided, suppose, in case, but। For example, unless you work hard you will not pass। unless you work hard you will not pass, you will not pass if you do not work hard। अनलेस के साथ नॉट नहीं लगता, यहाँ पे इफ लगेगा तो यू डू नॉट हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा, अनलेस प्लस अफर्मेटिव मतलब इफ प्लस नेगेटिव, सेम। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड क्या बनेगा, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, बस उसको नेगेटिव बना देना है आपको, नेगेटिव बना देना है आपने उसको। इफ के साथ लगाना है तो नेगेटिव बना देना, अनलेस के साथ बनाना तो अफर्मेटिव बना देना है। देखो, यू वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड, इट्स जस्ट द अफर्मेटिव एंड नेगेटिव ऑफ ईच। If you do not remember the affirmatives, negatives, go back, check the tenses. In the tenses, we did the structures of each. Here we have I shall support him so long as I am alive. Yes, I shall, I will, or I shall, करूँगा मैं ऐसा, support him so long as I am alive, or so long as I am alive, I shall support him. As soon as the train comes, there will be rush for seats. As soon as, देखो फिर से ये simple present, simple future. When he, जैसे ही I shall support him so long as I am alive, मतलब मैं तब तक उसको support करूँगा जब तक मैं जिंदा हूँ। As long as the train comes, as soon as the train comes, जैसे ही ट्रेन आएगी, there will be rush for seats, भीड़ भड़का बढ़ जाएगा सीट्स पकड़ने के लिए। When he comes to Delhi, I will go to meet him, जब वो दिल्ली आएगा मैं उससे मिलने जाऊंगा, I will go to meet him। Alright, that's that for grammar. Let's continue with our question paper solving from yesterday. If you remember, we started with the 2014 का second paper. We did the first 25 questions of it, and we must now move ahead with the other 25, starting from the 26th. We were on antonyms, if I'm not mistaken. Let's just check quickly.
He abandoned his family. So we have to tell, what do we have to tell here? Antonyms. Yes, indeed. We had done 5. Now we have to do 6. So he abandoned मतलब छोड़ के चले जाना. तो छोड़ के चले जाना का opposite यहाँ पे supported is the best option. 26th. Supported. History abounds in instances of courage. Abounds means shines or is shown और रहती है वहां पे ज्यादा मात्रा में. तो lacks. History abounds in instances of courage मतलब हिस्ट्री में बहुत सारे instances हैं शौर्य के, courage के, हिम्मत के अंदर बहादुरी के. और लैक्स मतलब कमी है. हिस्ट्री लैक्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज मतलब हिस्ट्री में कमी है ऐसे उदाहरण के. इंस्टेंसेस मतलब वही अवसर जहाँ पे कायरता दिखाई दी उसके में भी अवसर ज्यादा है, इसलिए वो लैक्स कह रहा है कि बहादुरी के अवसर कम है. एडवर्सिटी टीचर्स मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट. एडवर्सिटी इज द सेम एज एनिमोसिटी. एनिमोसिटी मीन्स हेट्रेड, एडवर्सिटी मीन्स प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लमैटिक टाइम्स. ऑपोजिट इज प्रॉस्पेरिटी. एडवर्सिटी का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, एडवर्सिटी मतलब तकलीफ है, कष्ट. Like poverty, affluence can sometimes create its own problem. Poverty होता है गरीबी, अत्यंत गरीबी. Affluence मतलब बहुत ज्यादा अमीरी, मतलब अच्छा खासा अमीर होना. तो opulence is also the same thing. The opposite here is indigence. Indigence also means poverty or being poor. The habit of squandering. Squandering मतलब फर्जी बेकार करना, बर्बाद करना, फालतू स्पेंड करना, फालतू खर्चा करना. 30th का ऑपोजिट इसमें हो जाएगा बी होर्डिंग. होर्डिंग मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना, फालतू में इकट्ठा करना. सो बी इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट हियर. Selecting words. Now we've got a grammar section here on our hand. We have to select words. You haven't had your lunch yet. आपको याद होगा क्वेश्चन टैग्स में से ऑपोजिट कर देते हैं उसका, ऑक्सिलरी का. haven't का ऑपोजिट have हो जाएगा. ऑपोजिट मतलब नेगेटिव ऑपोजिट. So have. You haven't had your lunch yet. Have you? Life is to death as pleasure is to pain. So ये आपका थोड़ा AFCAT जैसा क्वेश्चन आया है यहाँ पे. AFCAT में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. AFCAT में कैसा दिखता है ये? AFCAT में दिखता लाइफ, डेथ, प्लेजर, डैश और फिर ABCD ऑप्शन होते हैं. तो लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू पेन. प्लेजर इन पेन साथ में बोलते हैं, लाइफ डेथ जैसे साथ में बोलते हैं. सफरिंग भी हो सकता है पर पेन इज द बेटर वर्ड क्योंकि कोलोकेशन के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से पेन इज व्हाट इज यूज्ड विद प्लेजर. Suffering is used for comfort, with comfort mostly. The French dash reputed to have a very good sense of humor. The French are reputed. The French या तो were होता, will be reputed ऐसा नहीं है कि होंगे, ऐसा है. They are already reputed to have a good sense of humor. The French are reputed to have a good sense of humor. Please and thank you are the little courtesies by which we keep the dash of life oiled and running smoothly. तो किस चीज को आप ऑयल करते हैं, तेल किस चीज में डालते हैं आप उसको सही से चलते रहने के लिए? मशीन में डालते हैं भाई. तो मशीन बेस्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन. वी कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्मूथली. अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जा रही है ग्रामर की और साथ में वोकैबुलरी की भी. तो लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है भाई. मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लासिक लिटरेचर जो भी ऑथर्स हैं, रोल्ड डाल हो गया, रस्किन बॉन्ड हो गया, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हो गए, शेक्सपियर हो गए, ऑल ऑफ दोज पीपल, प्लीज बी रीडिंग देयर शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स एज मच एज यू कैन. जस्ट रीड ICSE बुक्स. ICSE की जो इंग्लिश बुक्स होती हैं फर्स्ट से लेकर 12th तक की, वो सारे आप पढ़ लो. स्टोरीज वोरीज उसमें, स्टोरीज और पोएम्स, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा. 35th. Now you're on 35th. Many of the advances of civilization have been conceived by young people just on the threshold of adulthood. You're on the threshold of adulthood. मतलब बिल्कुल adulthood की सीमा पर ही थे कि बस अब होने ही वाले थे adult. By young people on the just on the threshold of adulthood. या तो adult already थे, अभी बने हैं, या होने वाले हैं. Threshold मतलब सीमा होती है, तो थ्रेशोल्ड इज द बेटर ऑप्शन. बाकी सब भी अलग से बाउंड्री ऑफ अडल्टहुड, पीक, होराइजन, पर वही है लिटरेचर में हमें पता चलता है कि थ्रेशोल्ड इज द बेटर वर्ड फॉर दिस. द मोर योर एक्शन एंड थॉट आर allied and integrated. Yes. 36th C. The more your action and thought are allied and integrated. Allied and integrated मतलब आपके जो कर्म है और आपकी जो सोच है वो एक दूसरे से संगत में है और मिली जुली है. The happier you grow. वरना आप द्वंद में जीने लगोगे. मन में अगर आपको ये लगता है कि वायलेंस सही चीज नहीं है और आपको एक कसाई बना दिया जाए, आप जीवन भर द्वंद में जियोगे क्योंकि आपकी सोच जो है वो अहिंसा की है पर कार्य आपका रोज हिंसा का है. तो जो
द्वंद्व उत्पन्न होगा आपकी सोच और आपके कार्य में, वो आपको बेहद दुखद रखने में समर्थ रहेगी यदि आप अपने आप को ना समझा पाए तो। और क्यों करना भाई ऐसा कठिन कार्य, ऐसी फर्जी का फ्रिक्शन अपने ही अंदर ऐसा द्वंद्व पैदा करने का क्या मतलब है। आप जो सोचते हो अपने सोच के अनुसार ही अपने कर्म रखो, कर्मों के अनुसार अपनी सोच भी विकसित करने का प्रयास करो। He dashed in wearing the old-fashioned coat in spite of his wives. He insists in wearing, he persists in, he desists. He insists on wearing होता है insists के साथ, so we will do persists because in के साथ persists होता है। बेस्ट यहाँ पे insists होता है, पर insists के साथ जो preposition यूज होता है वो insists on wearing, so persists is the best because preposition के हिसाब से persists is the only one that matches. He persists in wearing the old-fashioned coat in spite of his wife's disapproval. कि वो लगातार पहन रहा है वो ओल्ड फैशन क्लोथ, हालांकि उसकी पत्नी को, उसकी अर्धांगिनी को वो पसंद नहीं है, मना करती है उसको। इट इज नॉट व्हाट यू से दैट्स डैश बट व्हाट यू डू, इट इज नॉट व्हाट यू से दैट मैटर्स बट व्हाट यू डू। कि मायने वो नहीं रखता जो आप कह रहे हो, पर वो रखता है जो आप कर रहे हो। कहता कितने भी रहो कि मैं प्यार आपसे, सोचो आप कितना भी कि आप अपने माता पिता से प्यार करते हो या अपने दोस्तों से या अपने भाई बहन से या जिससे भी, कि आप अंदर तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं सबसे प्यार करता हूँ, पर आपके एक्शंस, बोलने में आपकी जबान कड़वी है, कार्य आप उनके कुछ आते नहीं हो, इज्जत आप उनकी करते नहीं हो, तो आपके मन में आपको लग रहा है नहीं ये मेरा तरीका है प्यार दिखाने का, नहीं है बेवकूफ़ी है। ये तरीका नहीं होता है बेटा प्यार दिखाने का। प्यार दिखाने के कोई अपने अपने तरीके नहीं होते हैं। दूसरे व्यक्ति की खुशी में खुशी प्राप्त करना और उसका बेहतर चाहना, वो होता है प्यार। और वो सिर्फ सोचने में नहीं, कर्मों में होता है कि आप जो बोल रहे हैं, वाणी जो आपकी निकल रही है वो भी प्यारी मधुर है, और जो आप कर्म कर रहे हैं उनके लिए, कार्य कर रहे हैं आप उनके लिए कुछ, तो वो दिखता है प्यार। प्यार एक्शंस, लव इज एन एक्शन एंड नॉट एन इमोशन, प्लीज रिमेंबर दैट। महसूस करने से नहीं होता है प्यार, करने से होता है, कार्य करने से होता है। फिजिकली वी आर नाउ ऑल नेबर्स बट साइकोलॉजिकली वी आर डैश टू ईच अदर, वी आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर। यस, कि शारीरिक रूप में, भौतिक स्तर पे तो हम लोग सब एक दूसरे के आसपास हैं, सब हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, परंतु मानसिक स्तर पर, साइकोलॉजिकली वी आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बिल्कुल अपरिचित हैं। और सत्य भी है। ऑलराइट, द ओल्ड नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट होती है। नेचर वर्सेस नर्चर मतलब जो पैदा हुआ है व्यक्ति, उसके अंदर बसी हुई है उसकी खूबियां और उसकी खामियां, या फिर जो भी उसके साथ होता है जीवन भर में, जो भी अनुभव वो लेता है और जो भी चीजें वो सीखता है, जो भी शिक्षा वो प्राप्त करता है, उसके कारण उसके अंदर खूबियां और खामियां आती हैं। तो नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट यही है। नेचर का मतलब कि व्यक्ति पैदा होता है अपने स्वभाव के साथ, नर्चर कहता है कि नहीं, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति जब पैदा होता है तो कोरा कागज होता है और उसका स्वभाव बनता है। और कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बैलेंस होता है दोनों के बीच में, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा होते ही हैं, कुछ पार्ट होते हैं जो स्वभाव बनता है आपके उसके द्वारा, अनुभवों द्वारा। Alright, let's move on to the next one, sentence improvement. As the parties failed to reach any agreement, the meeting dash. The meeting broke up. The meeting broke through नहीं, you break through. A break through मतलब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, सोल्यूशन निकाल पाना किसी कठिन प्रॉब्लम का जो अभी तक नहीं हो पा रही थी। ब्रोक अप, ब्रेकआउट भी होता है, ब्रेकआउट ऑफ कोरोना वायरस, कोई वायरस कोई बीमारी ब्रेकआउट होती है। ब्रोक अवे मतलब टूट के अलग हो जाना। ब्रोक अप, मीटिंग ब्रोक अप मतलब अलग अलग, वो मीटिंग रुक गई है, रुक गई। If I reach there by this time, if I had reached there by this time, I will. If I reach there, अभी हमने देखा कंडीशनल सेंटेंसेस का, if के साथ अगर दूसरा वाला सिंपल फ्यूचर में है तो ये सिंपल प्रेजेंट होगा, तो if I reach there होगा। 40 सेकंड का भी देखो, अभी डायरेक्टली हम लोग ने एप्लीकेशन भी देख लिया कंडीशनल सेंटेंसेस का, और इसके सेंटेंसेस आते ही हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस किसी ना किसी तरीके से डेफिनेटली आता है एग्जाम में। ऑलराइट, my friend met me unexpectedly when I was looking for a taxi desperately, when I was looking for a taxi desperately. So be, my friend met me unexpectedly or ran into me, came across me. Ran into or came across we've done previously. Meeting unexpectedly and suddenly. Her learning makes up for her want of beauty. Her learning makes up for her want of beauty का मतलब क्या है? makes up for मतलब उसकी पूर्ति, कमी की पूर्ति कर देती है। किस चीज की कमी? उसकी खूबसूरती की कमी, जो उसकी सुंदरता में कमी है वो उसकी शिक्षा पूरी कर देती है। और मेकअप भी याद रखिएगा, आप मेकअप अगर लगाती हैं भाई, सब मेकअप का मतलब होता है कमी पूरी करना। तो मेकअप का मतलब कमी पूरी कर रहे हैं, जो सुंदरता आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिली है भगवान के द्वारा, उसकी कमी पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। पर याद रखिए, सुंदरता त्वचा में नहीं कर्मों में होती है।
आपके सोच में होती है, और श्योर आपके स्वास्थ्य में होती है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप सुंदर होंगे ही होंगे। स्वस्थ व्यक्ति की जो त्वचा है वो भी चमकती है, स्वस्थ व्यक्ति का दिमाग चमकता है, बढ़ता है, उसका जो शारीरिक हाव भाव होता है वो सबको भाता है। स्वस्थ व्यक्ति के साथ खुशियां भी चलती हैं, खुश व्यक्ति के साथ हर कोई रहना चाहता है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस और क्या। सो फॉर हो जाएगा मिक्स अप फॉर, यू मेक अप फॉर समथिंग, यू मेक अप फॉर अ कमी, किसी चीज की कमी पूरी कर दे तो मेक अप फॉर यूज होता है उसके साथ। ऑलराइट, नाउ if he got his enemy in his hand he would have crushed him। ओ, अब would के साथ मैंने कहा तो would have के साथ क्या, if he had got, would have यूज होता है पास्ट परफेक्ट के साथ। अभी कंडीशनल सेंटेंस हमने देखा, एक और कंडीशनल सेंटेंस आ गया, देखो would have का स्ट्रक्चर जो था if के साथ क्या लगता है, पास्ट परफेक्ट लगता है, had got। if he had gotten, और gotten भी हो सकता था, got का जो 3 वर्ड थर्ड फॉर्म होता है, अब लिखा नहीं है उसमें तो इट्स ओके। If he had got his enemy in his hand, he would have crushed him to death. That is what it is, 45th C. All right. Please ask your son to turn off the radio so that it is not quite so loud. So it is absolutely turn down, turn off नहीं, quite so loud वो बोल रही है, turn off the radio so it is not quite so loud. Turn off का मतलब हो जाएगा बंद करना, पर यहाँ पे वो कह रही है कि उसको कुछ ऐसा कहो कि वो इतना तेज ना हो, तो बंद करने को नहीं कह रही है, टर्न डाउन करने को कह रही है, मतलब धीमा करने को कह रही है वॉइस को। तो टर्न ऑफ सही होता वैसे, पर आगे का जो सिस्टम है, आगे का जो सेंटेंस है उसको देखते हुए कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि टर्न ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्न ऑफ करके तो शांति हो जाएगी। अगर ये लिखा होता प्लीज आस्क यू टू टर्न ऑफ द रेडियो सो दैट वी कैन हैव सम पीस, सो दैट वी कैन हैव सम क्वाइट, तब हो जाता टर्न ऑफ। He said that when I have worked for him for 6 months, I would get a pay. Oh, he said that when I would have worked for him for 6 months, I would have worked. So when I have worked नहीं, have worked नहीं, when I had worked. क्यों? वही would get, ये देखो would get, would वाला तो past had worked. He said that when I had worked. He said that when I had worked for him for 6 months, I would get a pay rise. When I would have had worked, should be the one. B. I think the NDA made a mistake here. They're saying A is the correct answer. I doubt it. I would say he said that when I would have had worked for him for 6 months, I would get, क्योंकि would get यहाँ पे would plus V1 है. Would plus V1 में हमने देखा conditional sentences के लिए present perfect use होता है. Present perfect have had worked है. If I have had worked, when I have worked, said that when I have worked. Alright, we'll go with the NDA answer for now. We'll say A. And then if there is any trouble in this, maybe I'll get back to you if I find something else. So he said that when I had worked for him for 6 months, I would get a pay rise. When I have worked for him. When I worked for him for 6 months, I would get a pay rise. This is correct. 47 should be D. There's some confusion here. I think we will peg it down to an incorrect question for this. I am looking forward to joining your organization. Absolutely, that's correct. Looking forward to, हम लोग कर चुके हैं इस चीज को. Looking forward to अपने आप में, और उसके बाद gerund आएगा. Looking forward to joining your organization. Looking forward to meeting. ING form आएगा, मतलब ये हम लोग ने देखा हुआ है ING form आना. Verbs advanced में, if you don't remember, please go back and revisit that lecture and you will see. So I'm looking forward to joining your organization. I'm looking forward to meeting you. I'm looking forward to coming there. I'm looking forward to ING form आएगा उसके बाद. I'm not sure why she is wanting to see me. No, why she wants. She is not wanting. ये भी हमने देखा था, want वाला जो verbs होते हैं वो ING form में इस तरह से use नहीं होते हैं. वो want यहाँ पे wanting नहीं लग सकता है, wants ही लगेगा. I'm not sure why she wants to see him. A. And the last question for today, everybody who finished writing can go home. So, Avi, again we saw that once you've done your work, you can go home. Has finished is the correct word. Everybody who has finished, already done, can go home. So, can जब हमने use किया था उसके साथ we saw present perfect, has finished, can go home. C is the correct option. Yeah. Alright, so that's that for today. And I will see you in the next one.